السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سچ نیوز اور میں ہوں احسن رضا اور میں ہوں عروج فاطمہ۔ ابتدا ہے رب کریم کے نام سے جو اپنی مخلوق پر بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے صدقے ہمیں ہر قسم کی وبا اور آفات سے محفوظ فرما۔ آمین۔ اور آپ کو خبر دیں کہ کپتان کا ایک اور کھلاڑی کرپشن کے الزام میں گھر چلا گیا۔ سابق مشیر اطلاعات اجمل وزیر کی کرونا اشتہارات میں کمیشن لینے کی مبینہ آڈیو لیک ہوئی تھی۔ الزامات کی چھان بین کے لیے وزیر اعلیٰ کے پی کے نے کمیٹی بھی بنا دی۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ مثبت تبدیلیاں جو ہماری حکومت نے انیشیٹو لیا یہ لوگوں کو سامنے نظر آئے گی، اور وہ جو پرانا چوری چکاری کا بازار تھا وہ ہم ختم کر چکے ہیں۔ اب جو وہاں کے عوام کے حقوق ہیں، جو ان کے لیے فنڈز آئیں گے، وہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے عوامی نمائندے کے مشاورت سے وہاں پہ جو بلدیاتی الیکشن ہوگا ان کے گراس روٹ لیول کے جو ان کے نمائندے ہوں گے ان کے تھرو انشاءاللہ استعمال ہوگا۔ وہ جو پرانا دور ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ دوسروں پر کرپشن کے الزامات لگانے والے خود کرپٹ نکلے۔ مشیر اطلاعات کے پی کے اجمل وزیر گھر چلے گئے۔ اجمل وزیر نے استعفے کو ذاتی وجوہات سے تعبیر کیا، مگر حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ اجمل وزیر کی کورونا کے اشتہارات سے متعلق 12% کمیشن لینے کی مبینہ آڈیو لیک ہوئی تھی۔ اب یہ درمیان میں جو ہے نا تو ہم نے ادھر باہر جی ایس ٹی نہیں کبھی بھی کاؤنٹ کرنا ادھر سے ہم نے بار بار نہیں سر جی ایس ٹی میں کبھی بھی کاؤنٹ ہوتی۔ آپ نے خود کہا کہ جناب اس نے اس طرح میرا جی ایس ٹی انکم ٹیکس جی ایس ٹی سب بتا رہے انکم ٹیکس کا 2 ٹیکس ہے سر، جس میں اجمل وزیر مبینہ طور پر اشتہارات کے لیے کمیشن کی ڈیل کر رہے تھے۔ چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ خیبر پختونخوا ایڈوائزر اینڈ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو چیف منسٹر ایکٹ 1989 کے سیکشن 3 کے ذریعے تفویض کردہ اختیارات کے تحت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اجمل وزیر سے فوری طور پر مشیر برائے اطلاعات اور تعلقات عامہ کا قلمدان واپس لے لیا ہے، جبکہ کامران بنگش کو اطلاعات کا قلمدان سونپا گیا ہے۔ کامران بنگش کے پاس بلدیات کا قلمدان بھی ہے۔ اجمل وزیر نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ذاتی وجوہات کی بنا پر استعفیٰ دیا ہے۔ نئے تعینات ہونے والے مشیر اطلاع کامران بنگش نے کہا کہ جب تک تحقیقات مکمل نہیں ہو جاتی افواہوں سے گریز کیا جائے۔ بات چل نکلی ہے، اب جانے کہاں تک پہنچے۔ 3 مارچ 2020 کو وزیر اطلاعات شوکت یوسفزئی کو ان کے عہدے سے ہٹا کر اجمل وزیر کو یہ قلمدان سونپا گیا تھا۔ دوسروں کی کرپشن پکڑنے والے خود پکڑ میں آ گئے۔ پی ٹی آئی رہنما حلیم عادل شیخ کے ستارے گردش میں ہیں۔ اینٹی کرپشن کے بعد نیب نے گھیرا تنگ کر دیا۔ حلیم عادل شیخ کا عملیر میں 257 ایکڑ زمین پر قبضے اور بیچنے کا انکشاف ہوا ہے۔ نیب نے ڈپٹی کمشنر ملیر سے غیر قانونی طور پر سرکاری زمین کے فروخت کے شواہد طلب کر لیے ہیں۔ نیب کی جانب علیم عادل شیخ پر سرکاری زمین پر قبضے اور غیر قانونی فروخت کا الزام عائد کیا۔ اس قبل علیم عادل شیخ پر مبینہ منی لانڈرنگ کا بھی الزام لگایا گیا تھا۔ اینٹی کرپشن نے گزشتہ برس علیم عادل شیخ پر غیر قانونی طریقے سے زمین کی فروخت پر چیف سیکرٹری سے پاکستان تحریک انصاف ممبر صوبائی اسمبلی کے خلاف مقدمہ درج کرانے کی اجازت طلب کی تھی۔ علیم عادل شیخ کے بھائی کو اپنی رپورٹ میں ملزم قرار دیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق سرکاری زمینوں کو پرائیویٹ کر کے دکھایا گیا تھا۔ اینٹی کرپشن نے متعلقہ اداروں کو جعلسازی سے آگاہ بھی کیا تھا۔ شاہد اجاز، سچ ٹی وی، کراچی۔ دوسروں کو نصیحت خود میاں فصیحت۔ پی ٹی آئی رہنما علیم عادل شیخ پیپلز پارٹی اور نون لیگ پر الزامات لگاتے نہیں تھکتے تھے۔ علیم عادل کبھی پیپلز پارٹی پر کرپشن کے الزامات لگاتے رہے تو کبھی نون لیگ کی قیادت کا دامن تار تار کرتے رہے۔ جو آپ کو ملتا ہے مال کھپے مال کھپے مال کھپے، صرف آپ نے مال چاہیے۔ یہ تھے وزیر اعظم عمران خان کے کھلاڑی حلیم عادل شیخ جو کرپشن کے الزام لگا کر دوسروں کا دامن تار تار کرتے تھے، آج خود گردش دورہ کا شکار ہیں۔ موجودہ حکومت پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو کرپٹ ٹھہراتی ہے۔ خود ان کے اپنے کارنامے ہیں کہ تھمنے میں نہیں آ رہے۔ گھسے پھٹے نعروں کی طرح ایک یہ دعویٰ بھی ہے کہ پی ٹی آئی اپنے نظریات پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی۔ جب ان سے پوچھا جائے کہ آخر آپ کا نظریہ ہے کیا تو کوئی جواب نہیں بن پاتا، بس پہلے سے
बज़ेर अताब सियासी मुखालफीन पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए जाते हैं। जब और कुछ ना हो सके तो खराबियों का जिम्मेदार अशराफिया और माफिया को ठहरा दिया जाता है। यूं तो सियासी मुखालफीन पर जाती नौयत के हमलों की तारीख बहुत पुरानी है, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उभार और इक़्तिदार के दौरान इसे जदीद बुनियादों पर इस्तवार किया गया है। ये सब को चोर, डाकू या भगोड़े समझते हैं। कुछ ऐसा ही हलीम आदिल शेख के साथ है। आए रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, बयानात और मीडिया टॉक्स पे पीपल्स पार्टी और नून लीग पर इतना गंद उछाला कि इंतहा कर दी। खुद को सादिक और आमीन समझने वाले भी करप्ट निकले। करप्शन की एक दास्तान है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख का मलीर की 257 एकड़ जमीन पर कब्जे और बेचने का इंकशाफ हुआ है। हलीम आदिल शेख पर मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का भी इल्जाम है। एंटी करप्शन की रिपोर्ट में जमीन पर कब्जे फरोख्त में हलीम आदिल शेख को मुलजिम करार दिया गया है। एंटी करप्शन रिपोर्ट में हलीम आदिल शेख के बड़े भाई को मुलजिम करार दिया। हबीब जान ने लियारी गैंग वॉर के ताने बाने सियासत के साथ जोड़ दिए। हबीब जान ने उजैर बलोच के पीपल्स पार्टी से करीबी ताल्लुकात का कच्चा चट्टा खोल दिया। कहते हैं कि जरदारी ने उजैर बलोच से अहम मुलाकात की। अवैस टप्पी ने आकर रंग में भांग डाली। वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी से मुतल्लिक दुनिया को सब कुछ पता चल गया। गैंगवार के सरगना के ताने बाने इक्तदार की गुलाम गर्दिशों से मिलने लगे। हबीब जान ने उजैर बलोच के पीपल्स पार्टी से करीबी ताल्लुकात का कच्चा चट्टा खोल दिया। वफाकी वजीर अली जैदी की जारी करदा वीडियो में हबीब जान ने इंकशाफात किए कि पीपल्स पार्टी ने उजैर बलोच से 2 बार राब्ता किया। उजैर बलोच पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। आसिफ अली जरदारी से उजैर बलोच की मुलाकात हुई थी। अवैस टप्पी के आने से गड़बड़ घोटाला शुरू हुआ। हबीब जान ने कहा कि आसिफ जरदारी की ख्वाहिश थी कि अवैस मुजफ्फर लियारी से इलेक्शन लड़ें। हबीब जान ने वीडियो में इंकशाफ किया कि कायम अली शाह, शर्मिला फारूकी, फरियाल तालपुर उजैर बलोच के पास गए। जब हुकूमत खतरे में आई तो उजैर बलोच से ताल्लुकात खत्म हुए। वफाकी वजीर बराए बहरी अमूर अली जैदी ने अपने पैगाम में कहा कि हबीब जान ने आसिफ जरदारी और कादर पटेल को बेनकाब किया। पीपल्स पार्टी से मुताल्लिक दुनिया को सब कुछ पता चल गया। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने माजी के हुक्मरानों को करप्शन और कमीशन का जिम्मेदार करार दे दिया। कहते हैं गुज़िश्ता 10 साल में हुकूमती खरीदारों पर 4 खरब रुपए ज्यादा खर्च किए गए। उन्होंने मजीद कहा कि माजी में इदारों की दानिस्ता तौर पर मफलूज किया गया। इदारों में शफाफियत और इस्तेहकाम हुकूमत के लिए बड़ा टास्क है। पिछले 10 साल का ले लें तो तकरीबन 3.5 से 4 खरब रुपए ज्यादा खर्च हुए जो उस चीज की कीमत थी, सब टैक्सेस सब कुछ डालते हुए। तो अब 4 खरब रुपए अगर पिछले 10 सालों में ये ज्यादा खर्च हुए हैं तो आप अंदाजा लगाएं कि ये फिर कर्जे जो हम लेते हैं, ये जो अवाम पे टैक्सेस लगते हैं, ये बुनियादी तौर पे उसकी जो बुनियाद है, उसकी जो जड़ है वो यही है कि जो करप्शन है उसको इसमें शामिल कर दी गया। और पिछली हुकूमतों ने क्यों इस पे तवज्जो नहीं दी? बिकॉज वो इसका एक हिस्सा थे। कराची वालों की सुनी गई। वफाकी वजीर बराए प्लानिंग असद उमर ने बड़ी खबर सुना दी। केआरएक्टी के हेड ऑफिस के सामने तहरीक इंसाफ के धरने में गवर्नर सिंध के साथ शुरका से खिताब करते हुए कहा कि कल से शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। गर्मी और लोड शेडिंग के सताए रोशनियों के शहर के बासियों की जान में जान आई। कल से गैर एलानिया लोड शेडिंग के खात्मे का ऐलान हो गया। वफाकी वजीर असद उमर ने कराची में कल से गैर एलानिया लोड शेडिंग के खात्मे का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक के लिए फर्नेस ऑयल के साथ गैस की फराहमी बढ़ाकर 290 मिलियन क्यूबिक फीट की जा रही है। कल से कराची में कोई भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। अगले साल गर्मियों से पहले यानी 2021 की गर्मियों से पहले 550 मेगावाट इजाफी बिजली कराची के लिए मुहैया होगी। वफाकी वजीर का कहना था कि किसकी गलती से लोड शेडिंग में इजाफा हुआ, इसका फैसला नेपरा करेगा। नेपरा कराची में लोड शेडिंग पर 3-4 दिन में रिपोर्ट जारी कर देगा। नेपरा कराची में लोड शेडिंग से मुतालिक फैसला करे, हुकूमत अमल दरामद के लिए तैयार है। हम आपकी भरपूर मदद करना चाहते हैं कि आप कराची के अवाम के मसाइल हल करें, लेकिन अगर इस तमाम मदद के बावजूद आप कराची के अवाम के मसाइल बिजली के ताल्लुक से
हल नहीं कर पाएंगे तो हम दूसरी तरफ नहीं देखेंगे, कानून की पूरी ताकत इस्तेमाल करेंगे। असद उमर ने कहा कि 2021 की गर्मियों से पहले 550 मेगावाट इजाफी बिजली कराची के पास होगी। 2 साल बाद यानी 2022 में कराची को बिजली की इजाफी फराहमी 1350 मेगावाट तक हो जाएगी। कराची में बिजली की लंबी छुट्टी हो गई। शहर में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे से 12 घंटे तक पहुंच गया। कोरंगी, लांढी, मलीर, कायदाबाद, लियाकताबाद में तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग होने से शहरी शदीद अजियत का शिकार हैं। शहरियों की दुहाइयां काम न आई, न सियासी जमातों का एहतजाज किसी काम आया। कराची के बेशतर इलाकों में 12 से 16 घंटे तक बत्ती गुल होने लगी। इस वक्त भी शहर के बहुत से इलाके बिजली से महरूम हैं। बिजली की लोड शेडिंग से मुतासरा इलाकों में कोरंगी, लांडी, कायदाबाद, मलीर, लियाकताबाद, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जोहर, भिटाई आबाद, सच्चल गोड समेत दीगर शहरी व मजाफाती इलाके शामिल हैं, जहां दिन और रात के दौरान 12 से 16 घंटे तक बिजली गायब रहती है। शहरियों का कहना है कि एक तरफ बिजली की लोड शेडिंग है तो दूसरी जानिब भारी भरकम बिल्स भेजने का सिलसिला भी जारी है। शहरी इलाकों के अलावा सनती जोन्स भी लोड शेडिंग से शदीद मुतासिर हैं। ताजरों और सनतकारों ने बिजली की लोड शेडिंग का जिम्मेदार तमाम सियासी जमातों को करार दिया है। गुज़िश्ता रोज नेप्रा की वीडियो लिंक पर अवामी समात के दौरान कराची के शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। शहरियों ने कहा, न दिन का सुकून है न रात का चैन, भारी बिल्स लिए जाते हैं, बिजली क्यों नहीं दी जाती। जिस पर चेयरमैन नेप्रा ने कहा कि उनकी टीम कराची का दौरा भी करेगी। अवामी समाज से हासिल होने वाले हकायक का जायजा लेने के बाद फैसला जारी किया जाएगा। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर मोन्स अलवी ने लोड शेडिंग की जिम्मेदारी PSO पर डालते हुए कहा कि पावर प्लांट्स के लिए तेल फराहम नहीं किया गया था। अशरफ सोलंकी, सच TV, कराची। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ ऑल पार्टीज का मुश्तरका धरना 90 रोज में दाखिल हो गया। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं शहजादा मोइन। हाय बिजली, हाय हाय, चोर है चोर है, के इलेक्ट्रिक चोर है, चोर है चोर है, के इलेक्ट्रिक चोर है। ऑल पार्टीज की जानिब से इत्तेहाद टाउन UC 36 में के इलेक्ट्रिक की ओवर बिलिंग और गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ धरना जारी है। धरने में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के नुमाइंदे और लोगों की बड़ी तादाद धरने में मौजूद है। लोगों का कहना है कि के इलेक्ट्रिक की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम का जीना दोबर कर दिया है। अगर के इलेक्ट्रिक नाकाम इदारा है तो फिर खुदारा इसका कोई रास्ता देखा जाए, क्योंकि KEC से जब ये के इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो रहा था तो उस वक्त भी लोगों ने एहतजाज किए कि ये जुल्म करेंगे, ये आपसे जो है ज़्यादा पैसे बटोरेंगे किसी भी तरीके से। आज वही साबित हो रहा है, ये अपने मनमाने रेट ऊपर लेके जाते हैं, लोगों को ये परेशान करते रहते हैं और ओवर बिलिंग के नाम पर ये जो अपनी मर्ज़ी से चार्ज करते हैं पैसे। तो इस चीज़ के ऊपर इदारों को चाहिए कि इनका नोटिस लें। आज हमारा 9वां दिन है, यहाँ हम धरना लगा के बैठे हुए हैं। जिनकी बिजली आती है इन पे इनको हमने फोर्स किया कि ये आप ख़त्म करें। 9 दिन हो गए, इनकी तरफ से कोई इकदाम नहीं है। इलेक्ट्रिक का जो जुल्म का बाजार इन लोगों ने सजाया हुआ, इससे आवाम बहुत ज़्यादा परेशान। धरने में मौजूद जब तक हमारे मुतालबात और के इलेक्ट्रिक की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म नहीं करती, हम एहतजाज और धरना जारी रखेंगे। कराची में लोड शेडिंग के साथ ही पानी का बहरान भी फिर से सर उठाने लगा। मुतादिद इलाकों में पानी नायाब हो गया और शहरी टैंकर्स खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। शहरी कहते हैं, क्या खाएं क्या पिएं, जिंदगी गुजारना मुश्किल हो चुका है। गर्मियों का आगाज होते ही कराची में बिजली के बाद पानी का बहरान, शहरी जाए तो जाए कहां। शहर में कायम सरकारी हाइड्रेंट से पानी का हुसूल जो है शहर मुतारिफ है। शहरी कहते हैं लाइनों में पानी आता नहीं, महंगे दामों पे वाटर टैंकर खरीदने पड़ते हैं। वो जो दूसरा टैंकर होते हैं ना, जब वो हम मंगवाते हैं तो सर उसमें फिर हमारे को 4-5 हज़ार रुपए का पड़ता है। और सर वो टैंकर फिर आप खुद सोचे सर, हम खाएंगे क्या, पिएंगे क्या। तनख्वाह सर हम 8-9 हज़ार रुपए का काम करते, जॉब करते दूसरी की जगह पे। शहर में पानी की तलब में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है, जिसको पूरा करने में वाटर बोर्ड नाकाम है, जिसकी वजह से टैंकर माफिया की चांदनी हो चुकी है और आवाम को महंगे दामों पर टैंकर फराहम कर रहे हैं। शहरियों ने वजीर बल्दियात से अपील की कि आवाम को टैंकर माफिया से निजात दिलाई जाए और लाइनों में पानी की सप्लाई को मुमकिन बनाया जाए। कैमरामैन SN के साथ शाहिद इजाज, सच TV, कराची। कराची टैंकर माफिया के नलके में आ गया। वाटर बोर्ड के साथ मिलकर शहरियों को लूटने लगा है। सिंध सरकार की बेहिसी और इंतजामिया की नाअहली से प्याज के सौदागर शहर में दंदनाने लगे हैं।
समंदर के किनारे आबाद शहर के बासी सिंध सरकार की नाअहली का खमियाजा भुगतते टैंकर माफिया के हाथों यरगमाल बन चुके हैं। बिजली की गैरलानिया लोड शेडिंग का फायदा उठाकर टैंकर माफिया ने कराची वालों के लिए शहर में करबला मचा दी। शहरी पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। इंतजामिया की मिली भगत से पीने के पानी के टैंकर की कीमत दुगनी कर दी। पानी सरकारी लाइनों से चोरी क्या हुआ, अवाम का हक अवाम को ही महंगे दामों बेचा जा रहा है। वाटर बोर्ड के अफसरान और एहलकारों की मिली भगत से पंपिंग स्टेशन से पानी के टैंकर भरकर मुख्तलिफ इलाकों में 6000 से जायद की कीमत पर फरोख्त किए जा रहे हैं। शहरियों के लिए पानी की फराहमी मुअत्तल रहने के बाद भी शहर में मौजूद टैंकर माफिया के गैर कानूनी हाइड्रेंट्स पर पानी की फराहमी बिला तात्तुल जारी रहती है। ये सूबाई हुकूमत का शहरियों के साथ किए जाने वाले इम्तियाजी सलूक का मुंह बोलता सबूत है, जिसके बायस शहरियों में एहसास महरूमी पैदा हो रही है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में भी पानी का बहरान शदीद तर होता जा रहा है। शहर के फिल्ट्रेशन प्लांट्स बंद होने लगे हैं। शहरी दूर दराज के इलाकों से पानी भरने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे फरहान एजाज। पंजाब के दिल लाहौर में फिल्ट्रेशन प्लांट नकारा होने लगे। शहरी पानी भरने के लिए दूर दराज का सफर करने पर मजबूर हैं। इतनी दूर से हैं, यहाँ पे पानी आता नहीं, जहाँ पे भी जाए पानी यानी कि आ ही नहीं रहा है। ये अब हम इतनी दूर से आए हैं यानी कि। शहरी कहते हैं कई इलाकों में तो अक्सर पानी मिलता ही नहीं, अगर कहीं मिल जाए तो सफाई के मुनासिब इंतजाम न होने के बाइस पीने के काबिल नहीं होता। सफाई सुथराई के जो नाकिस इंतजाम हैं उसी वजह से ये जो है ना ये प्लांट बंद पड़े हुए हैं। यहाँ पे आप देख ले पानी तो है लेकिन सफाई का कोई निजाम नहीं है, ना कोई बंदा केयर करने वाला है यहाँ पे। यहाँ पे अब गंदगी है लेकिन लोगों ने पानी से मजबूरी भरने आना है। अब बच्चे आते हैं, बच्चे आपको पता है कि उनका हाथ नहीं पानी तक पहुंचता, वो ऊपर चढ़ जाते हैं, ठीक है। अब बच्चे तो उनको क्या पता कि यहाँ पे सफाई करनी है कि नहीं। हुकूमत की जानब से हर फिल्ट्रेशन प्लांट पर अमला तैनात किया गया है, मगर मुलाजमीन का ड्यूटी से गैर हाजिर होने के बाइस पानी की हालत खराब से खराब तर होती जा रही है। फिल्ट्रेशन प्लांट का नकारा होना और बेशतर फिल्ट्रेशन प्लांट पर सफाई सुथराई के नाकिस इंतजाम होना इंतजामिया की गफलत का मुंह बोलता सबूत है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि लाहौर में नए फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब किए जाएं और नकारा फिल्ट्रेशन प्लांट को जल्द फाल किया जाए ताकि उन्हें पानी की किल्लत का सामना न करना पड़े। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ फरहान इजाज, सच न्यूज लाहौर। बात करेंगे बदलते मौसम की, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। और ब्रेक के बाद आपको बताएं कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, बादल जमकर बरसे, आसमान से बरसते पानी ने जल थल एक कर दिया। हवा ने भी खूब साथ निभाया, दरख्त भी जड़ों से उखड़ गए। बारिश के साथ मानसून की आमद का बिगल बच गया। शहरी इक्तदार में बादलों की घन घरत, शाम से छाए बादल अचानक फट पड़े। हवा ने साथ निभाया तो तूफान बादो-बारा की शक्ल इख्तियार कर गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश के बायस गर्मी का जोर टूट गया। आसमान से बरसते पानी ने जुड़वा शहरों में जलथल एक कर दिया। आंधी की शिद्दत बर्दाश्त न करने वाले दरख्त जमी बोस हो गए। बारिश की आमद के साथ ही मानसून के मौसम ने अपनी आमद का बिगल बजा दिया। महकमे मौसमियात ने रवां साल मुल्क भर में मानसून सीजन के दौरान अच्छी बारिशों की पेशगोई की है। मुल्क में मजमूई तौर पर मामूल के मुताबिक कश्मीर और सूबा सिंध में अगस्त और सितंबर में मामूल से 20% ज्यादा बारिशें मुतवक्के हैं। पाकिस्तान में मानसून सीजन का दौरानिया 3 माह जुलाई था सितंबर का है। मौसम का हाल बताने वालों ने इतवार के रोज बालाई वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, मशरकी बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान कर दिया। इस दौरान चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की भी तवक्को है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। कराची में मानसून की बारिश के बाद शहर की सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी, जिसके बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं शहजादा मोइन। कराची में मानसून बारिश के पहले स्पेल के बाद शहर कायद की सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। सड़कों पर बारिश का पानी जमा होने के साथ साथ सीवरेज का गंदा पानी भी रोडों पर जमा होना शुरू हो गया, जिससे शहरियों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना है कि सड़कों पर सीवरेज का गंदा पानी रोडों पर जमा होने से हमारा कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। ये टीनटी से पानी आ रहा है, सारा बल्दियात
ये देखें, हम तो रोड पार करके नमाज भी पढ़ने के लिए नहीं जा सकते, ऐसी हालत बुरी हुई है। ये 10 दिन से हमारी हालत ऐसी बुरी हुई है कि हमारा कस्टमर भी नहीं आते इस तरफ। कस्टमर तो दूर की बात है, हम खुद काम नहीं कर सकते इस बदबू की वजह से। यही कहना है कि वजीर बल्दियात से, हुक्मरान से कि इसको जल्द से जल्द मामला को क्लियर करा लें। शहर कायद के लोगों का कहना है कि सीवरेज का गंदा पानी अगर रोडों पर इसी तरह जमा रहा तो मुख्तलिफ बीमारियां पैदा हो सकती हैं। शहरियों ने वजीर बल्दियात और मेयर कराची से अपील की है कि जल्द अज जल्द रोडों की सफाई की जाए। कैमरामैन सराज के साथ शहजादा मोइन, सच टीवी, कराची। पायलट्स के जाली लाइसेंस और डिग्रियों का मामला सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। रिपोर्ट में PIA समेत दीगर एयरलाइंस में पायलट्स की तफसीलात शामिल हैं। SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाली एयरलाइंस के खिलाफ कार्रवाई की हदायत कर दी गई। सिविल एविएशन ने कहा, बाज एयरलाइंस एयरपोर्ट्स पर और दौरान परवाज एहतियाती तदाबीर की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। तमाम एयरपोर्ट मैनेजर्स को कार्रवाई के लिए तहरीरी अहकाम जारी कर दिए गए हैं। डिप्टी DG एयरपोर्ट ने तमाम एयरपोर्ट मैनेजर्स को मरासला लिखा था, जिसमें एयरपोर्ट मैनेजर्स को एयरलाइंस की निगरानी मजीद सख्त करने की हदायत की गई थी। CAA का कहना है कि बाज एयरलाइंस मुसाफिरों में समाजी फासले की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। CAA की हदायत के बावजूद जहाजों को भर कर लाया जा रहा है। डिप्टी DG एयरपोर्ट ने कहा, खिलाफ वर्जी करने वाली एयरलाइन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इससे कबल बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर SOPs की खिलाफ वर्जी पर वजारत सेहत की जानिब से CAA को तहरीरी शिकायत की गई थी। पाकिस्तानी लाइसेंस याफ्ता पायलट्स की नौकरियां खतरे में पड़ गईं। यूरोपीय यूनियन के 32 ममालिक के बाद इथियोपिया ने भी पाकिस्तानी पायलट्स को तैयारे उड़ाने से रोक दिया। इथियोपिया की हुकूमत ने पाकिस्तानी पायलट्स को लाइसेंसों की तस्दीक कराने की भी हिदायत कर दी। वजीर हवाबाजी की बयानबाजियां दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानी लाइसेंस याफ्ता पायलट्स को महंगी पड़ गईं। यूरोपीय यूनियन के 32 ममालिक के बाद इथियोपिया ने पाकिस्तानी पायलट्स के हवाले से सख्त फैसला सुना दिया। पाकिस्तानी पायलट्स को तैयारे उड़ाने से रोक दिया गया। इथियोपिया की जानिब से पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी को खत लिखा गया, जिसके जरिए पाकिस्तानी पायलट्स को तैयारे उड़ाने से रोकने से मुतल्लिक आगाह किया गया। इथियोपिया की हुकूमत ने पाकिस्तानी पायलट्स को लाइसेंस की तस्दीक कराने की भी हिदायत कर दी। खत में कहा गया कि इथियोपिया में काम करने वाले पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस की तस्दीक की जाए और बताया जाए कि PIA के किन पायलट्स के लाइसेंस जाली हैं। कौमी एयरलाइन ने मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया। मुसाफिरों को दुबई अथॉरिटी की जानिब से सफर के लिए क्लियरेंस सर्टिफिकेट का वसूल भी लाजमी होगा। कोरोना वायरस के 22 तवील बंदिश के बाद कौमी एयरलाइन की मुत्तहिदा अरब इमारात के लिए परवाजें बहाल होने को तैयार। पाकिस्तान से दुबई, शारजा, अबुजहबी और अलैन के लिए परवाजें बहाल होंगी। कोरोना वबा के 22 मुसाफिरों को SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा, जिनमें मुसाफिरों को परवाजों की रवानगी के 96 घंटों के अंदर मुख्तस करदा लेबॉर्ट्री से कोरोना टेस्ट लाजमी करवाना होगा और मनफी रिपोर्ट बोर्डिंग के वक्त पेश करना होगी। मुसाफिर हजरात को दुबई अथॉरिटी की जानिब से सफर के लिए क्लियरेंस सर्टिफिकेट का हसूल भी लाजमी होगा। परवाजों की बहाली के बाद सफर करने के ख्वाहिशमंद अफराद ऑनलाइन अप्लाई करके मतलूबा इजाजतनामा हासिल कर सकेंगे। इमारात पहुंचने से पहले हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म भी पुर करना लाजमी होगा। तर्जुमान PIA अब्दुल्ला कहते हैं कि टिकटों के फरोख्त का आगाज हो चुका है, जो PIA के दफातर के अलावा वेबसाइट और एजेंट से भी हासिल किए जा सकते हैं। नबील नकवी, सच न्यूज, लाहौर। कोरोना ने आलमी मईशत का टाइटैनिक डुबो दिया। वायरस से मईशत को 11,000 अरब डॉलर इजाफी खर्च करना पड़े। IMF का कहना है कि ये रकम इंसदाद कोरोना इक़दामात के लिए खर्च हुई। कोरोना की शिद्दत मईशत तबाह कर रही है। कोरोना के नुकसानात पर IMF ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि कोरोना से आलमी मईशत को 11,000 अरब डॉलर इजाफी खर्च करना पड़ेगा। ये रकम इंसदाद कोरोना इक़दामात के लिए खर्च हुई। रिपोर्ट में कहा गया कि आलमी पॉलिसी साजों के लिए इतनी बड़ी रकम की पेशगोई नहीं थी। कोरोना की शिद्दत मईशत को तबाह कर रही है। IMF रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की वजह आलमी कर्जा आलमी मईशत के मसावी हो गया। आलमी कर्जों का यह हजम दूसरी जंग अजीम के बाद हुआ। IMF का कहना है कि आलमी कर्जों ने आलमी माशी पॉलिसियों का तवाजुन बिगाड़ दिया। कोरोना वायरस की वजह से जो मुआशी बहरान पैदा हुआ उसकी मिसाल नहीं मिलती। आलमी इदारे ने पेशगोई की है कि अगले साल के लिए आलमी शरह नमू 5.4% हो सकती है, जो गुज़श्ता तखमीने से 0.4% कम है। कोरोना वायरस के खिलाफ नाकाफी इक़दामात पर आलमी इदारे सेहत के सरबराह फट पड़े। कहते हैं वायरस से बचने के लिए तमाम ममालिक को चौकस रहने की जरूरत है। मौजूदा सूरत हाल में कोरोना वायरस का खात्मा मुमकिन नहीं।
मौजूदा सूरत हाल में कोरोना वायरस का खात्मा मुमकिन नहीं, आलमी अदारा सेहत ने खतरे की घंटी बजा दी। WHO के सरबराह कोरोना वायरस के खिलाफ नाकाफी इकदाम पर फट पड़े। कोरोना वायरस से मुताल्लिक अपने बयान में कहा कि मुस्तकबिल में कोरोना वायरस के खतरे से बचने के लिए तमाम ममालिक को अहम किरदार अदा करना होगा और लॉकडाउन के बाद कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर लाजमी अमल करना होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से बचने के लिए तमाम ममालिक को चौकस रहने की जरूरत होगी। ये समझना सबसे बड़ी गलती है कि कोरोना कुछ भी नहीं और ऐसा सोचना आलमी और कौमी सतह पर क़ियादत का फुकदान है। उन्होंने कहा कि इंसानों का एक मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ इकट्ठा न होना लम्हा फिक्रिया है। ये एक ऐसा दुश्मन है जो इंसानों को अंधाधुंध कत्ल कर रहा है। जरूरत इस अम्र की है कि आलमी ताकतें यकजहती का मुजाहरा करें, क्योंकि इस वक्त ये इनका इम्तिहान है। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। अब बात करेंगे महंगाई की, तो हुक्मरान सिर्फ दावों तक महदूद, अवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं। महंगाई है कि कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। शहरी कहते हैं कि 50 की चीज 80 और 80 की चीज 100 रुपए में मिल रही है, कोई भी पूछने वाला नहीं। रिपोर्ट कर रहे हैं अलमदार बलोच। मुल्क भर की तरह वफाकी दौर-ए-हुकूमत में महंगाई का जोर है। सब्जियों, फलों, आटा समेत हर चीज की कीमतें गरीब की पहुंच से दूर हैं। शहरी कहते हैं पहले 4000 में महीने का राशन लेते थे, अब महंगाई की वजह से मुश्किलात बढ़ गई हैं। जो पहले मतलब जब भी लेने जाते हैं, महीने का खर्चा लेने जाते हैं, तो वो 4,000 में आ जाता है, 3-4 में, लेकिन अब जाओ तो वही खर्चा उसी प्राइस में अगर हम लें तो 6,000 तक चला जाता है। तो फिर हमें उसमें से कट करना पड़ता है, कुछ चीज़ें निकालनी पड़ती हैं, तो ये जाहिर सी बात है बहुत मुश्किल हो जाती है। महंगाई और ज़्यादा बढ़ गई है, कोई रिलीफ नहीं मिला। हकीकत में देखा जाए ना, पहले जो चीज़ अवेलेबल थी 30 रुपए की, अब वो 60 रुपए की है। महंगाई में इजाफा हुआ है दिन ब दिन, इसमें कोई कमी नहीं हुई। शहरियों का कहना था कि कीमतें सुनकर हैरान हो जाते हैं। पहले टमाटर 50 रुपए तक किलो था, अब 120 पर पहुंच गया है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां नजर ही नहीं आती। कल परसों गया हूँ, आटा लेने के लिए गया हूँ, तो उसमें यह था कि जो मुझे आटा मिल रहा था पहले 700-750 का मिल रहा था, अब वही जो प्राइस है वो मुझे 1100 या 1200 रुपये का वो आटा मिल रहा है। लेकिन क्वालिटी में क्या फ़र्क है, क्वालिटी इनकी काफ़ी चेंज हो गई। बढ़ती जा रही है महंगाई, कम नहीं बढ़ती जा रही है, दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। टमाटर वगैरह सारा कुछ महंगा कर दिया, पहले सस्ता था। शहरियों ने शिकवा किया कि अवामी नुमाइंदे इलेक्शन जीतकर इक्तदार के अवामी में तो पहुंच जाते हैं, मगर अवाम को भूल जाते हैं। महंगाई है कि बढ़ती जा रही है। टमाटर 120, प्याज 60 और आलू 80 पर बिक रहा है। शहरी कहते हैं कोई चेक एंड बैलेंस नहीं और न ही कोई रिलीफ मिल रहा है। हुक्मरानों ने जो वादे किए थे वो पूरे करें। कैमरामैन बिलावल खुर्शीद के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज, इस्लामाबाद। ईद उल अज़हा पर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है, मगर महंगाई ने इस बार मंडियों की रौनकें कम कर दी हैं। इस्लामाबाद में सड़क किनारे सजी छोटी छोटी मंडियों के व्यापारी गाहक न होने का गिला करते दिखाई देते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान चौधरी। ईद कुर्बान से कबल वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद की मुख्तलिफ शाहराहों के गिर्द कुर्बानी के जानवरों की मंडियां सजना शुरू हो गयी। तहम गाहक न होने के बायस व्यापारी परेशान दिखाई देते हैं। कहते हैं महंगाई भी बढ़ चुकी और गुज़श्ता बरस से कीमतें भी दुगना हो चुकी हैं। सर पहली बात यह है कि हर चीज़ महंगा होता जा रहा है ना, इस तरह अभी वबा भी फैला हुआ है, तो इस वजह से गाहक इतना नहीं निकलता। आ जाते हैं लेकिन फिर चला जाते हैं। और जानवर पिछले साल कुछ मतलब खरीद जो गरीब बंदा ले सकता था, इस साल मुश्किल है, क्योंकि मंडियाँ भी उस तरह नहीं लग रही जिस तरह मतलब पिछले साल लग रही थी, और जानवर भी उस तरह नहीं आ रहे जो मतलब के मंडियों से लोग खरीद सकते थे। महंगाई इतनी ज्यादा है, महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं है। ईद कुर्बान की आमद से कबल सड़क किनारे सजी मंडियों में इक्का दुक्का जो गाहक आते हैं, उनको भी महंगाई ने परेशानी से दो चार कर रखा है। ये बकरा खरीदने के लिए आए थे यहाँ पे, और जैसे कि बाकी सारी चीजों में भी महंगाई जो है वो बहुत ज्यादा अरूज पे है, और इसी तरह ये बकरों और माल मवेशी में भी बहुत ज्यादा महंगाई है। अभी हमारा सौदा भी नहीं हो रहा है, जो रेट ये बता रहे हैं वो हमारी रेट से बहुत दूर है। शहर इक़्तिदार में लगे छोटे जानवरों की मंडियों में अभी वो रौनकें तो नहीं, मगर व्यापारी पुरुमीद जरूर हैं कि ईद से 1-2 रोज कबल शहरी खरीदारी के लिए जरूर आएंगे। ईद कुर्बान से कबल वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद की शाहराहों के गिर्द जानवरों की मंडियां सजना तो शुरू हो चुकी, लेकिन गाहक न होने के बराबर हैं। व्यापारियों का कहना है कि गुज़श्ता साल की निस्बत कीमतें ज्यादा होने की वजह से शहरियों का रुझान कम है। कैमरामैन हुसैन बलगारी के साथ कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद।
लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने दाता दरबार बम धमाके के सहूलतकार मोहसिन को बारूदी मवाद रखने के जुर्म में सजा सुनाती। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज भट्ट ने मुजरिम मोहसिन को सजा सुनाई। अदालत ने मुजरिम मोहसिन को 2 दफा उम्र कैद, एक बार 14 साल कैद की सजा और तमाम जायदाद जब्त करने का हुक्म सुनाया है। मुजरिम के खिलाफ थाना CTD ने मुकदमा दर्ज किया था। मुजरिम ने दाता दरबार पर बम धमाके में सहूलतकार का किरदार अदा किया था। शहर कायद में बल्दिया उज़्मा कराची ने तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया। सदर में गैर कानूनी बसों के बुकिंग स्टॉल्स मिसमार कर दिए गए और फुटपाथों पर और सड़कों पर रखा सामान जब्त कर लिया गया। लैंड एंटी एनक्रोचमेंट के अमले पर हमला करने की कोशिश करने वाले कब्जे के 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। शहर कायद को तजावीज़ात से पाक करने के लिए KMC महकमा इंसात तजावीज़ात की कार्रवाई का सिलसिला जारी है। सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी की ज़ेर निगरानी डिस्ट्रिक्ट साउथ सदर में बोरी बाजार के अतराफ तजावीज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, जिसके दौरान फुटपाथ पर बनाए गए बसों की बुकिंग स्टॉल्स को तोड़ दिए गए। KMC के अमले ने फुटपाथ और सड़कों पर रखे गए केबिन्स, पथारे, होटल का सामान और दीगर तजावीज़ात को जब्त कर लिया। ऑपरेशन के दौरान लैंड एंटी इंक्रोचमेंट के अमले को मुज़ाहमत का भी सामना करना पड़ा। कब्जा माफिया ने एंटी इंक्रोचमेंट सदर के डिप्टी डायरेक्टर नुमान अहमद पर हमले की कोशिश की और सरकारी ट्रक से जब्त शुदा सामान छीनने की कोशिश के अलावा संगीन नताइज की धमकियां भी दी। ताहम इस मौके पे मौजूद पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए तजावीज़ात माफिया के 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तजावीज़ात के खिलाफ होने वाले ऑपरेशन में KMC के अलावा पुलिस, इंतजामिया और दीगर इदारों ने भी हिस्सा लिया। शहजादा मोइन, सच TV, कराची। कराची में लैंड माफिया, स्ट्रीट क्रिमिनल और मुंशियात फरोशों की तरह बिल्डर्स माफिया भी शहरियों के लिए वबाल जान बन चुके हैं। ओल्ड सिटी एरिया, सोल्जर बाजार, नाजमाबाद, लियाकताबाद, फिडलबी एरिया समेत शहर के दीगर इलाकों की तरह गुलशन इकबाल बरोच गोट भी लैंड माफिया के हेड लिस्ट पर आ गया। 200 और 400 गज के बेंगलोस को खरीद कर मालिक मकान से सजदेदारी करके 4 और 6 मंजिल इमारत में पोषण तामीर करके फरोख्त किए जा रहे हैं। बिल्डर माफिया है जो यहाँ छाई हुई है, हर जगह बिल्डिंगें बना कर अपना तिजारत कर रही है और लोगों को परेशान करके जा रही है। यहाँ पर पहले थे 400 घर की आबादी, अभी 4000 घर की आबादी हो गई। इस तरीके से गैर कानूनी बिल्डिंग्स बनने पे बने जा रही हैं और यहाँ पे रोकने वाला, सुनने वाला कोई भी नहीं है। यहाँ के MP, MNS किसी को कोई फिक्र नहीं है। बेसिकली अगर फिक्र होती तो आज ये सब कुछ नहीं हो रहा था जो हो रहा है यहाँ पे। शहरियों का कहना है पोषण के खरीदार मासूम शहरी इस बात से बेखबर हैं कि गुलशन इकबाल बलोच गोट KDA से लीज नहीं है। न सिर्फ खरीदे गए पोषण गैर कानूनी है, बल्कि जिस प्लाट पर वो इमारत बनाई गई है वो भी गैर कानूनी है। मुआज़िज़ अदालत के हुक्म पर पूरा बलोच गोट मिसमार किया जा सकता है और मासूम शहरी खून पसीने की कमाई बिल्डर माफिया की नजर हो सकती है। इसके बाद SBC के अमले ने आंखें बंद रखी हुई हैं, जिसके बाद कोई पुरसान हाल नहीं है। कैमरामैन फैजान खान के साथ शाहिद इजाज, सच TV, कराची। वजीर आजम इमरान खान ने मकबूजा कश्मीर में बोस्निया जैसी कत्लेआम का खदशा जाहिर कर दिया। बोस्निया के शहर सरब्रेनिका में मुसलमानों के कत्लेआम के 25 साल मुकम्मल होने पर अपना पैगाम दिया। अपने पैगाम में वजीर आजम पाकिस्तान का कहना था कि सरब्रेनिका में कत्लेआम आज भी सदमे का बायस है कि आलमी बरादरी ने ये वाकया कैसे होने दिया। 25 years ago when it happened, I still feel the shock how such a thing could have been allowed by the world community. I think it's important for us to learn lessons from that. The world community must never allow such things to happen again. We see problems for the people of Kashmir. 800,000 Indian troops have besieged 8 million people of Kashmir, and we all fear that a similar sort of massacre might follow there. So the world community must take notice and never allow such acts to take place again. From the people of Pakistan, I send my salams and best wishes to the people of Bosnia.
اختیارات کے ناجائز استعمال پر مواخذے کی کارروائیاں بھگتنے والے امریکی صدر نے اپنے اختیارات کا ایک اور غلط استعمال کر ڈالا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے دیرینہ ساتھی اور سابق مشیر راجر سٹیون کی 40 ماہ قید کی سزا ختم کر دی۔ ٹرمپ نے سابق مشیر راجر سٹون کی سزا شروع ہونے سے پہلے ہی ختم بھی کر دی۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری بیان میں کہا کہ راجر سٹون پہلے ہی بہت نقصان اٹھا چکا، اس کے ساتھ بہت غیر منصفانہ سلوک کیا گیا۔ اس معاملے میں بہت سارے دوسرے افراد بھی تھے۔ سٹون کو 2016 کے امریکی انتخابات میں روس کی مبینہ مداخلت کی تحقیقات میں کانگریس کے سامنے جھوٹا بیان دینے پر سزا سنائی گئی تھی۔ اور اب خبریں شامل کریں کھیل کے میدان سے۔ گرین شرٹس کی انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے تیاریاں جاری ہیں۔ قومی ٹیم کی بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ میں خامیوں پر قابو پانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ دورہ انگلینڈ کے دوران شاہینوں کی ٹیسٹ سیریز سے قبل ووسٹر میں بھرپور تیاریاں جاری ہیں۔ قومی ٹیم بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ میں خامیوں پر قابو پانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ کھلاڑیوں نے بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ میں اپنی خامیوں پر قابو پانے کے لیے خوب پسینہ بہایا۔ گرین شرٹس کی صلاحیتوں میں مزید نکھار لانے کے لیے ہیڈ کوچ مصباح الحق نے کھلاڑیوں کو ٹپس دیں۔ 4 روزہ ٹریننگ کے بعد قومی ٹیم نے دوسرا 2 روزہ پریکٹس میچ کا آغاز کر دیا۔ اس میچ میں 2 ٹیمیں بنائی گئیں۔ گرین ٹیم کی قیادت اظہر علی اور وائٹ ٹیم کی کپتانی سرفراز احمد کر رہے ہیں۔ کوچنگ سٹاف کے مطابق ان پریکٹس میچز کی وجہ سے کھلاڑیوں کی کارکردگی بہتر انداز میں جانچی جا سکتی ہے۔ قرنطینہ پورا ہونے کے بعد قومی ٹیم کے دوبارہ کورونا ٹیسٹ کیے جائیں گے اور قومی اسکواڈ 13 جولائی کو ووسٹر سے ڈربی شائر روانہ ہو جائے گا۔ سید وقار حسین، سچ نیوز، لاہور۔ میچ فکسنگ کے جرم میں تاحیات پابندی کا سامنا کرنے والے پاکستان کے سابق کرکٹر سلیم ملک نے الزام لگایا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ ان کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے۔ پی سی بی کی طرف سے جواب موصول ہو گیا ہے۔ پی سی بی کے جواب سے متعلق وکیل سے مشاورت کر رہا ہوں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ آنے والے اتوار کے روز پریس کانفرنس میں اپنا واضح موقف دوں گا۔ اسے تو کرکٹ بورڈ، میں حیران اس چیز پہ، کرکٹ بورڈ نے کہا کہ آپ نے جواب نہیں ٹھیک دیا، آپ ہمیں دوبارہ جواب دیں۔ اور میں تو تیاری کر رہا تھا اپنے دوسرے جواب کے لیے کہ میں یہ کرکٹ کس طرح یہ جواب کو میں اپنے کو ٹھیک کر کے دوبارہ ان کو جواب دوں۔ میں اپنے وکلا وغیرہ سے ملنے کے لیے کوشش کر رہا تھا کیونکہ ابھی جا کے میں نے کوشش دوبارہ کرنی ہے۔ مگر بات یہ ہے کہ یہ 2014 کی بات کریں، میرے سے تو جواب انہوں نے مانگا تھا اسکرپٹ کا، NSAT صاحب، اور یہ کھلاڑیوں اور شائقین کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے۔ ٹینس کی عالمی فیڈریشن نے کھلاڑیوں اور شائقین کے درمیان ہونے والے انٹریکشن کی ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں سٹار کھلاڑیوں کو شائقین کے تحائف وصول کرتے آٹوگراف دیتے دکھایا گیا ہے۔ حاضر ہوتے ہیں کچھ دیر میں نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ، دیکھتے رہیے سچ نیوز۔